Good evening, everyone. After so long, we are joining again at this time. So today, we have a motivational speaker, Mehuli Kamdar, with us. Mehuli Kamdar, if I give her introduction, at the age of 29, she started giving lectures in a small way. And at the age of 40, she was first invited to US to speak in Jaina convention, which is the largest convention of Jains outside India. So before we ask Mehuli to join us, let me announce the next program also. Tomorrow from 4 to 7 p.m., we have virtual exhibition, which is going on since last 3 days. Tomorrow will be the 4th day and Wednesday will be the 5th day. So virtual exhibition will be there on Monday and Wednesday from 4 p.m. to 7 p.m. And on Wednesday at 9:30 p.m. Again, your favorite program, debate. This time, the teenagers will be debating. The topic is women empowerment today has actually become male bashing. Women empowerment today has actually become male bashing. It will be girls versus boys debate. And yes, that will be on Wednesday, 9:30 p.m. Tomorrow from 4 to 7 p.m. virtual exhibition. And again, Wednesday, 4 to 7 virtual exhibition, which is going on. Different products are there. You have to visit to see it. But just now, for what we have gathered here, we are going to start the conversation with Mehuli Kamdar. We are going to talk about her journey from housewife to motivational speaker. So let's welcome Mehuli Kamdar with us. From housewife to motivational speaker. So let's welcome Mehuli. Your video is upside down. Sideways है. Video सीधा करना पड़ेगा. Mehuli, can you hear? हाँ. Video side માં આવે છે. આડો આવે. Side આવે છે. Yes. Yeah. So welcome to Fun from Home page, Mehuli. Thank you. Thank you very much, Bhavna. Yes. So can you hear me? Am I audible? Yeah. Perfect. So Mehuli is a motivational speaker. Mehuli, I can see you. Yes. So Mehuli is a motivational speaker. But let me tell you, I know Mehuli since, I'll tell you how many years. I lost count, but I think 20 years. Yeah. Yes. So when we were in Jain social group, she was very shy.
very shy, very introvert. She hardly used to speak. So suddenly, from a housewife, can you tell me something about yourself? How did you start this journey of speaking? Rather, we'll talk about speaking only. What inspired you to speak like? एक्चुअली धर्म के संस्कार बचपन से ही मिले और मुझे परिवार भी धार्मिक मिला, धार्मिक वातावरण भी मिला. एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन माय लाइफ, बेस्ट पार्ट ऑफ माय लाइफ, और जो मेरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहा मेरे जीवन में, दैट वाज माय मॉम. शी वाज हाईली नॉलेजेबल and she had in-depth knowledge of Jainism. और इतना ही नहीं, she used to teach साधु साध्वी जी. तो उनका जीवन मेरे सामने था. वो उनका मतलब अभ्यास करना, दूसरों को अभ्यास करवाना और साथ में घर को भी संभालना, परिवार को भी संभालना. तो उनका जीवन मेरे सामने था. So I have learned lots and lots about Jainism from her only. मुझे याद नहीं कि बचपन में मैंने कभी कोई मैगजीन पढ़ी हो या कोई नोवेल पढ़ी हो. शुरू से ही मेरी रुचि धर्म की तरफ रही है और धीरे धीरे आगे बढ़ती गई. तो इस प्रकार एक स्ट्रॉन्ग बेस मेरा बना. और उसके बाद शादी के बाद मैंने केम टू कलकत्ता, और कलकत्ता में किसी से भी ये बात छिपी नहीं है कि मेरे इन-लॉज और मेरे हस्बैंड काफ़ी सपोर्टिव थे शुरू से ही. उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया, एनकरेज किया और सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जिससे कि आगे में बढ़ सकूं और अभ्यास कर सकूं. और आपने जो कहा कि जर्नी ऑफ ये बोलने की जर्नी, ये स्पीकर बनने की जर्नी मेरी किस प्रकार शुरुआत हुई, तो पूछना चाहूंगी. हाँ, मेरे सुनने में आया है कि आपने एमए किया. एमए बहुत लेट स्टार्ट किया. तो दैट आई वुड लाइक टू नो कि एमए इन जेनोलॉजी करने का यू हैड दैट इंक्लिनेशन, मेरे को ये चीज करना ही है. सो हाउ यू डू दैट? तो यही कि देखिए शुरुआत किस प्रकार से हुई. एमए करने की इच्छा मुझे कब हुई कि सबसे पहले 2006 में ताई महाराज का चातुर्मास था, आचार्य श्री चन्ना जी का चातुर्मास था कलकत्ता में कामानी जैन भवन में. और उन्होंने पब्लिक स्पीकिंग की क्लास की शुरुआत की. एंड एज यू नो कि भाई किसी से बात करना, और ना कॉलेज लाइफ में ना स्कूल लाइफ में मैंने कभी कहीं पर भी पार्टिसिपेट नहीं किया था, ना ही मैंने कभी माइक हाथ में पकड़ा था, बिकॉज आई हैड दैट स्टेज फियर. तो मैंने ज्वाइन किया पब्लिक स्पीकिंग क्लास, और उस दिन ताई महाराज ने कहा कि कुछ क्लासेस करने के बाद उन्होंने कहा कि आप सबको एक पर्टिकुलर कोई भी विषय, जो जिसको जो विषय पसंद है उसके ऊपर कुछ बोलना है. सो दैट डे भावनाबेन, आई वाज द ओनली वन हु स्पोक ऑन religious topic for 10 minutes, and she was very happy and she decided to send me for Paryushan. So this is how my journey started. So in 2006, 10 minute के लिए I spoke for only 10 minutes, and that was also on religious topic. So everyone appreciated. तब से जो जर्नी की शुरुआत हुई और आज 2020 तक अविरत रूप से ये जो जर्नी है वो चल रही है. और अब देखिए, एवरी ईयर आई यूज्ड टू गो फॉर पर्यूशन. हर साल मुझे लेक्चर देना है, मुझे स्पीच देनी है. तो यू नीड टू हैव द नॉलेज, बगैर नॉलेज के व्हाट यू विल से. तो आपको उसके लिए अभ्यास भी तो करना पड़ेगा. तो उस अभ्यास में आगे बढ़ने के लिए मुझे मास्टर इन जेनोलॉजी करना था. तो उसके बाद दैट आइडिया केम इनटू माय माइंड कि नहीं, मुझे एमए करना है. बट द थिंग इज कि एमए करने के लिए यू नीड graduation certificate. What happened with me? I failed in last year of my college. I failed in 3 subjects, and वो subject कौन से थे? Cost account, financial account और economics. So I failed. Without graduation certificate, you cannot do MA.
तो अगर आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं है तो यू कैन डू BA इन जेनोलॉजी, और वो भी 3 साल के लिए। और जब मैंने BA का सिलेबस देखा तो इट वाज एकदम बेसिक सिलेबस था जो मेरा ऑलरेडी किया हुआ था। सो आई मतलब इट वाज नॉट वर्थ स्पेंडिंग 3 years जस्ट फॉर डूइंग BA। तो एनी हाउ अब मुझे ग्रेजुएशन कंप्लीट करना था। तो सोचिए कि 1.5 महीने का टाइम था और 1.5 महीने में ये तीनों सब्जेक्ट, अब सोचिए इट वाज सो चैलेंजिंग फॉर मी। भावना बहन की शादी के 12 साल बाद आप वापस वो अकाउंटिंग एंट्री सीख रहे हैं कि कहाँ से डेबिट कहाँ पे क्रेडिट करना है, कौन सी एंट्री कहाँ जाएगी, और इकोनॉमिक आप वापस पढ़ रहे हैं जस्ट फॉर डूइंग MA। तो ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट था मेरी लाइफ का कि 12 साल के बाद जब आपने सब कुछ छोड़ दिया है तब वापस से ये पढ़ाई करो। बट आई डिड इट and I got the graduation certificate, और फिर then I started my MBA. I finished my MA in genealogy मेरा complete हुआ। That's a very मतलब you accepted the challenge. Yes, and it was very big challenge for me. Yeah. So nowadays when they say na challenge accepted, so that way you also accept the challenge. Now if I ask you all these religious activities and everything and your घर का, so how do you balance your घर का काम and this religious activities? अब देखिए आजकल तो वुमेन सारी आप जानती हैं भावना बहन के, दे आर सो कैपेबल। अच्छा फैसिलिटीज भी इतनी अवेलेबल है कि घर के जो मेरे परिवार के सदस्य हैं दे आर ऑल्सो क्वाइट सपोर्टिव। अब परिवार का जब सपोर्ट मिल जाता है देन एवरीथिंग बिकम्स सो इजी। अब मेरे जो फादर इन लॉ है तो आज भी वो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं और आज भी मुझे कहते हैं कि भाई यू कैरी ऑन वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। तो उनका मुझे काफी सपोर्ट रहा है और भाविन इज ऑलवेज देयर विथ मी, सो आई डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। सो ये आसानी से हो जाता है। और आजकल तो हम देखते हैं कि काफी सारे लेडीज है जो कैरियर ओरिएंटेड है और कई सारे काम करती हैं तो घर को भी संभालती है, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। सो इट इज वेरी easy to balance both the life. But as everyone says that everyone has a guru in their life. आपकी लाइफ में भी कोई गुरु रहे होंगे या गुरु है, so who is your गुरु? देखिए जब गुरु की बात आती है तो जहाँ से हमें धार्मिक नॉलेज मिला है, जिन जिन व्यक्ति से हमने सीखा है, जिन जिन व्यक्ति से हमने अभ्यास किया है, वो सारे हमारे गुरु हैं। मेरे हिसाब से कोई भी एक पर्टिकुलर व्यक्ति किसी का गुरु नहीं हो सकता। जैसे बचपन से ही जो मेरा अभ्यास चल रहा है तो माई मॉम वॉज माई गुरु, और शादी के बाद जिन जिन से मैंने अभ्यास किया कलकत्ता आने के बाद, जैसे पुष्पा बहन, स्वर्गीय श्री हर्षद भाई मेहता, हर्षद भाई दोषी और कुमुद बहन और कई सारे व्यक्ति हैं, मेहुल भाई हैं, कई सारे व्यक्ति जिनसे मैंने अभ्यास किया, जिनसे मैंने सीखा, तो उन सब को मैं गुरु मानती हूँ। वे सब मेरे लिए गुरु है। और पंच महावरधारी जितने भी मुनि भगवंत हैं जो परमात्मा की आज्ञा अनुसार अपना जीवन जीते हैं, वो सब हमारे गुरु हैं। तो मेरे ख्याल से कोई एक पर्टिकुलर गुरु हम नहीं कह सकते कि ये पर्टिकुलर व्यक्ति मेरे गुरु है। Yes, that means in life, in every phase, someone is your guru who teaches you in every aspect. Yes, very true. You written a book called Shrota Adhikar, right? Yeah. Shrota Adhikar. Shrota Adhikari, and which was launched by the governor of West Bengal. So how did you write what inspired? And let me tell you, you are the first female to write a book on Jainism. In Eastern India? In India, yeah. In India. Because there are so many ladies who have written so many books, but in particular Eastern India. So how did you think about writing a book? Did you plan or it happened just like that? देखिए
कोई प्लानिंग नहीं था लिखने का कि मुझे कोई बुक लिखनी है, बट मेरी शुरू से हैबिट रही है कि लिखने की। जब भी मुझे कुछ अच्छा कुछ माइंड में आता है या मुझे लगता है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई शुड नोट इट डाउन, तो आई यूज टू राइट इट डाउन। और एक दिन सडनली आई वॉज राइटिंग समथिंग एंड भाविन केम फ्रॉम द ऑफिस, ही टोल्ड मी कि तुम इतना, जब भी मैं घर में आता हूँ यू मतलब कुछ ना कुछ लिखती रहती हो, इतना ही अगर तुम लिख रही हो तो इतने में तो कितनी सारी बुक्स हो जाए। तो ऐसे ही मजाक में मैंने भाविन को बोल दिया कि भाई माई बुक इज रेडी, डू यू वांट टू पब्लिश इट, देन एवरीथिंग इज रेडी। और ये क्या हुआ कि मुझे पोल्यूशन के लिए आई वॉज प्रिपेयरिंग माई स्पीच। तो वो स्पीच का जो टॉपिक था, तो मुझे श्रोता के ऊपर कुछ लिखना था, क्योंकि देखिए हम सब एक श्रोता है। जब हम बोलते हैं देन वी आर अ स्पीकर, व्हेन वी आर लिसनिंग वी आर श्रोता। तो देखिए जब भी हम जाते हैं एज ए स्पीकर, कहीं पर भी जाते हैं, तो हम क्या देखते हैं, क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो लोग सुनते हैं, सोचिए हम इतना कुछ सुनते हैं फिर भी जो ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, जो चेंजेस आनी चाहिए लाइफ में, वो नहीं आती। व्हाई? सो वन शुड नो व्हाट आर द बेस्ट क्वालिटीज ऑफ श्रोता, हाउ वी कैन बिकम अ गुड लिसनर। तब मुझे ये लगा कि फॉर माई स्पीच आई शुड राइट समथिंग ऑन श्रोता। तो आई वॉज राइटिंग एंड ही टोल्ड मी दैट तुम इतना लिख रही हो तो भाई कितनी सारी बुक इसमें तो हो जाएगी। देन आई टोल्ड हिम, और मेरे फादर इन लॉ ही सपोर्टेड मी और ही टोल्ड मी कि नहीं, कि इसको तुम प्रिंट करो, इसको पब्लिश करना है। तो भाविन भाई तुमने लिख लिया तो भाई तुमने लिख लिया तो कोई कौन सी बड़ी बात है। तो ही वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट, बट माई फादर इन लॉ टोल्ड मी कि नहीं, जब उसने लिखा है तो हमें पब्लिश करवाना चाहिए, हम किसी से इसको अप्रूव करवाएंगे कि जो लिखा है वो ठीक लिखा है कि नहीं लिखा है। और इस प्रकार, और आचार्य चन्ना जी के पास हमने वो भेजा, उन्होंने अप्रूव किया। और चंद्रवदन भाई पंचमिया जो हमारे कलकत्ता में ही रहते हैं, उन्होंने सारी पूरी जो राइटअप थी वो स्टडी करने के बाद ही अप्रूव एंड एवरीथिंग गॉट डन। और उसके बाद सारा प्रिंटिंग हुआ, पब्लिशिंग हुआ, सब कुछ हुआ। ओके अभी जैसे मैंने जूम किया ना, तो आई सो आपके पीछे में अवार्ड्स पड़े हैं। अवार्ड तो मेरे को आई नो कि देवी अवार्ड्स साहित्य टाइम्स की ओर से हुआ था, एंड आई वाज देयर बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ द देवी अवार्ड्स कमिटी। सो एक अवार्ड तो पता है, एक जैन दर्शिनी कुछ मैं देख रही हूँ, व्हाट इज दैट आपको, मतलब दैट इज आई थिंक अनन्या अवार्ड्स और व्हाट, व्हिच अवार्ड? अनन्या अवार्ड इज डिफरेंट। अनन्या अवार्ड तो हिंदुस्तान क्लब से मिला था, और जैन दर्शनी अवार्ड्स कामानी जैन भवन से मिला हुआ है। So you got many awards also. And कमानी जैन भवन में चन्ना स्वाध्याय मंदिर में आप कैसे, as a head teacher you are working, so how did that happen? जब से चन्ना स्वाध्याय मंदिर की स्थापना हुई 2006 में या उसके पहले, तो जब से शुरुआत हुई चन्ना स्वाध्याय मंदिर की, आई वॉज टीचिंग देयर, और सडनली तो तब से आई वॉज एसोसिएटेड विद चन्ना स्वाध्याय मंदिर। तो बीच में गैप आ गया था, आई लेफ्ट चन्ना स्वाध्याय मंदिर फॉर सम रीजन, एंड देन अगेन आई वॉज इन्वाइटेड बाय द मेंबर्स ऑफ कामानी जैन भवन। प्रफुल्ल भाई जो कामानी जैन भवन के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने मुझे कहा कि व्हाई डोंट यू कम अगेन, व्हाई डोंट यू ज्वाइन कामानी जैन भवन। So even all the teachers, all the other head teachers, they also invited me, they approached me for again joining this Channa Swadhyay Mandir, and this is how I again joined the Channa Swadhyay Mandir. Okay, so you have done international touring also. So can you tell us something about your international experience? मतलब international फर्स्ट इंटरनेशनल एक्सपोजर मुझे मिला 2017 में इन जैना कन्वेंशन। उसके बाद लास्ट ईयर आई वेंट टू एलन टाउन यूएस फॉर पोल्यूशन।
पर्यूषण के बाद I went to Las Vegas for another lecture. Then from Las Vegas I went to California for another lecture. तो जो मेरा the best part of foreign country, what I have observed भावना बहन, कि वहाँ के जो लोग हैं उनको धर्म की जो वैल्यू है और स्पीकर के प्रति जो रिस्पेक्ट है, that amount of respect we won't get here in India particularly. क्योंकि इंडिया में भी I have been to many places for पर्यूषण, और इंटरनेशनल मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कि आज वहाँ के जो लोग हैं, अब यहाँ पे क्या है भावना बहन कि आपको सब जगह से मिल रहा है, you get religious knowledge from so many people, so we don't value. वहाँ पे क्या है कि देखिए वहाँ पे हस्बैंड और वाइफ दोनों वर्किंग है, मगर पर्यूषण के पहले वो लीव एप्लीकेशन दे देते हैं कि पर्यूषण के 10 दिन हम नहीं आएंगे काम करने के लिए. सो पर्यूषण की आराधना अच्छे से हो और जो भी स्पीकर आता है फ्रॉम इंडिया अच्छे से सुन सके, अच्छे से आराधना कर सके, तो उसके लिए दे टेक लीव. तो और यहाँ पे ऐसा देखने को नहीं मिलता है कि भी पर्यूषण आ रहा है तो भी घर का काम छोड़ दिया या फिर 10 दिन के लिए 8 दिन के लिए केवल आराधना में लग जाते हैं. वैसा यहाँ पे हमें देखने नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे लगता है कि आज नहीं तो कल देख लेंगे, कल सुन लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, महाराज साहब का तो योग मिलता ही रहता है. तो यहाँ पे ये मेंटालिटी है, और वहां पे उनको साल में सिर्फ एक बार ये चांस मिलता है, तो मतलब उनको इतनी वैल्यू है. और एक एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी भावना बहन कि लास्ट ईयर जो हुआ कि एक भाई थे वहां पे, उनके जो शब्द थे गुजराती में मैं आई वुड लाइक टू से कि એમણે કીધું ભાવનાબેન કે અમારા ઘરમાં આખો દિવસ ધોળિયાઓની જ અવરજવર થાય છે. એટલે આખો દિવસ કે ધોળિયાઓની અવરજવર થાય છે, ધોળિયાઓ છોડીને કોઈ ચહેરા અમને આટલા વર્ષોમાં જોવા નથી મળતા. તમારા જેવા જ્ઞાની જો અમારા ઘરમાં પગલા કરે તો અમે પણ ધન્ય થઈ જઈએ અને અમારું ઘર પણ ધન્ય થઈ જાય. સો આ એમના શબ્દ હતા, એન્ડ લિટરલી he had tears in his eyes. तो कहવાનો मतलब એ છે ભાવનાબેન, ये मैं कहना चाहती हूँ कि the amount of respect you get over there, and they value our religion like anything. Okay. One more thing, जैसे मैंने फन फ्रॉम होम पेज खोल लिया लॉकडाउन में, इतने सारे इवेंट्स कर दिए लॉकडाउन में. मैंने सुना है आपने भी बहुत सारे लेक्चर्स दिए हैं, 60 hours continuous, मतलब इतने 4 महीना में 60 hours lectures you have given, right? So I think that's also commendable. Heads off to you also. You might be associated with other religion also. Yeah, what are you thinking about other religions and their approach towards our religion, or what is your opinion about other religion? I have done comparative studies भावना में, तो other religion के बारे में I have done lots of studies also, like Gita, even Bible, little bit of Bible. और गीता पे तो I have given lectures also on Gita. तो और जो other religion है, तो we should equally respect all the religion, because Jainism says कि we should respect all the religion. तो यही मेरा मानना है कि सब धर्म जो है वो हमें उनको इक्वल इम्पोर्टेंस देना चाहिए. ऐसा नहीं है कि हम एक को, क्योंकि सब अपने अपने एस्पेक्ट से कहीं ना कहीं सही है, तो we should respect all the religion. Okay. I would like to know, people might be wondering कि आप इतना जैन धर्म के पर religious हो, इस पे you talk, you give व्याख्यान देते हैं जो भी है, तो what is your lifestyle? Is it normal like ours or is something different? हाँ, देखिए भावना बहन, धर्म का अर्थ ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाओ, because see, you have responsibility towards your families also.
तो हम लोग ऐसा नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि सब कुछ मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि देखिए धर्म क्या है, धर्म की जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो क्या है। हमने धर्म को सिर्फ खाने पीने में सीमित करके रख दिया है कि भाई अगर आप नहीं खाते ये सब चीज तो आप धार्मिक है, अगर आप खा रहे हैं तो आप पापी है। मगर धर्म की इतनी संक्षिप्त, इतनी स्थूल रूप से धर्म की डेफिनेशन नहीं है। धर्म एक, धर्म की जो व्याख्या है, धर्म काफी उसकी विशालता है, काफी उसकी व्यापकता है। एंड व्हाट इज रिलीजन, धर्म एक्चुअली में है क्या, कि लेट गो करना, कॉम्प्रोमाइज करना, स्वभाव में रहना, और धर्म हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। सी वंस यू आर मैरिड, वंस यू हैव फैमिली, देन आपको उनकी खुशी के बारे में भी सोचना है। तो ऐसा नहीं है, बिकॉज सी आई ऑल्सो गो आउट, आई गो आउट फॉर मूवी, आई गो आउट फॉर रेस्टोरेंट ऑल्सो, सो आई लिव नॉर्मल फैमिली लाइफ लाइक ऑल अदर लेडीज। सो ऐसा नहीं है कि धर्म है, रिलीजियस है तो फिर सब कुछ छोड़ दिया है, क्योंकि क्योंकि हमें, क्योंकि और देखिए भावना बहन, जब भी व्हेनेवर आई गिव एनी लेक्चर और प्रवचन, व्हाट आई से कि हमें आसक्ति को छोड़ना है, हमें राग द्वेष को छोड़ना है, हमें नेगेटिविटी को छोड़ना है। सो व्हाट आई यूज, व्हाट वर्ड आई यूज, आपको छोड़ना है ऐसा नहीं, हमें छोड़ना है, मीन्स आई इंक्लूड माई सेल्फ ऑल्सो। तो आई हैव नॉट रीच दैट लेवल कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मेरे कषाय भी चले गए, मेरा मोह भी चला गया, मेरा ममत्व भी चला गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो और ये देखिए मोक्ष की जो साधना है भावना बहन, इट्स अ ग्रेजुअल एंड स्लो प्रोसेस, ये एक भव की साधना नहीं है। हाँ, नो डाउट कि पिछले भव में ऐसी कोई आराधना की है कि आज शासन के प्रभाव ना मैं कर पा रही हूँ, तो ये जो है उत्तरोत्तर विकास हो रहा है, और डेफिनेटली आगे के लाइफ में आई विल गेट दिस टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी, और ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन ऐसा आएगा कि आई विल रीच अप टू दैट लेवल। सो इट्स अ स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। मेरे दिमाग में एक ख्याल हमेशा आता है कि कपड़ा, क्लोथ्स, पर्टिकुलर काइंड ऑफ क्लोथ्स यहाँ नहीं पहनना चाहिए, या पर्टिकुलर काइंड ऑफ क्लोथ्स, सो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज, मतलब एक डेफिनेशन दे दिए है कि ये कपड़ा पहनने से यहाँ नहीं जा, ये कपड़ा पहन के यहाँ नहीं जाना चाहिए, या मंदिर के लिए यही कपड़ा होना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू यू हाउ इम्पोर्टेंट इट इज? अब देखिए मंदिर में, देखिए सब जगह भावना में एक डेकोरम होता है, एक डिसिप्लिन सब जगह देखिए हम मेंटेन करते हैं। जिस प्रकार देखिए कि हम अपने रूम में जो नाइट सूट पहनते हैं, तो वो पहन के क्या हम बाहर निकलेंगे? तो इसी जगह जिस प्रकार हमें डिसिप्लिन, सब जगह एक डिसिप्लिन मेंटेन करनी पड़ती है, ठीक उसी प्रकार हमें जगह के लिए भी ये डिसिप्लिन मेंटेन करनी है। अब देखिए अगर हम डिस्को में जा रहे हैं तो वहां पे साड़ी पहन के जाएंगे, और डेफिनेटली इट वोंट लुक गुड। तो सब जगह की एक डेकोरम होता है, एक डिसिप्लिन होती है, तो दैट वी शुड फॉलो। उसमें कोई, मेरे ख्याल से कोई गलत बात नहीं है। न, मतलब सी व्हाट आई वाज आस्किंग कि कपड़ा, हाँ डेकोरम आई अंडरस्टैंड, पर अगर मैं भगवान में मानती हूँ, कि अगर मैं मानती हूँ कि चलो नौकार मंत्र में मानती हूँ, और मैं सपोज ये जीन्स और ये पहन के बैठी हूँ, मेरी भगवान में क्या आस्था कम हो जाएगी? नहीं नहीं नहीं, डेफिनेटली नहीं, क्योंकि देखिए अगर आप प्रवचन सुनने आ रहे हैं तो प्रवचन में अगर आप जीन्स पहन के बैठे हो तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, बिकॉज सी आई गो टू फॉरेन कंट्रीज, तो वहां पे काफी सारे यंगस्टर्स आते हैं, तो दे कम इन वेस्टर्न वेयर ओनली, तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। बट हाँ, पर्टिकुलरली मंदिर का एक डेकोरम होता है कि वहां पे आपको ये पर्टिकुलर कपड़ा पहनना है, तो डेट इज डिफरेंट थिंग। वो सारे हाँ, वो सारे सारे मंदिर में ये है, हाँ, यू हैव टू मेंटेन दिस डिसिप्लिन। मगर आई गो टू फॉरेन कंट्री, तो वहां पे पीपल वेयर, सो देयर इज नो ऑब्जेक्शन। ओके, एंड during these times I think you got featured in Times of India also, रेडियो मिर्ची में भी आपका टॉक शो हुआ है, और ये सब करते करते सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंजेस तो आते हैं। सी लाइफ इज नॉट ऑलवेज इजी, तो आपकी लाइफ में भी चैलेंजेस तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो आएंगे, भले मैं जितना भी
हाँ, माय हस्बैंड इज सपोर्टिव, माय फैमिली फैमिली में होता है, हाँ सपोर्ट करते हैं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं. बट स्टिल आई वुड लाइक टू आस्क यू कि लाइफ में चैलेंजेस क्या है आपके? देखिए, सबसे बड़ी जो चैलेंजेस, देखिए challenges are part of life, as we all know. तो 2013 में I lost both my mothers in a span of 4 days. Like 15 November को I lost my mother and 19 November को I lost my mother-in-law. तो वो जो टाइम था वो बड़ा ही क्रूशियल टाइम था, लेकिन during that period I realized कि this is the time where I need to apply Jainism in my life. Like मुझे संयम रखना है, मुझे धैर्य रखना है और मुझे अपने आप को भी संभालना है और परिवार के लोगों को भी संभालना है. तो that time जो ये धर्म का एप्लीकेशन इन देखिए, ये धर्म की जो सही समझ होती है, लाइक आई वुड से कि spirituality is the best, I would say, psychiatrist and counselor in people's life, in bad and good times. कि सुख के दिनों में आपको किस तरह से रहना है और दुख के समय में, चैलेंजेस के समय में आपको उस चैलेंजेस को किस तरह से एक्सेप्ट करना है, that teaches, spirituality teaches us. So that was the big challenge in my life. और कहते हैं ना भावना बहन की अग्नि में तप कर ही सोना चमकता है, ठीक उसी प्रकार जो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता है वो भी हैप्पीली, उसका जीवन भी ठीक उसी प्रकार चमकता है. और वो व्यक्ति जिसने चैलेंजेस को लाइफ में एक्सेप्ट कर लिया, जिसने अपने खराब टाइम को एक्सेप्ट कर लिया, समझ लीजिए उस व्यक्ति को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता. और दूसरी जो चैलेंज की बात मैं आपसे बताऊं कि जो मेरे लाइफ में मैंने फेस की, दैट इज एज प्रॉब्लम. क्योंकि कहीं पर भी जब भी मेरा जाना हुआ फॉर पर्यूषण और फॉर रिलीजियस डिस्कोर्सेस, मतलब एज देख के पीपल यूज्ड टू जज मी कि भाई इसको क्या नॉलेज होगा, व्हाट शी इज गोइंग टू स्पीक. सो दैट वाज देयर फर्स्ट रिएक्शन कि व्हाट शी इज गोइंग टू से. और इवन लास्ट ईयर आई वुड से आई वेंट टू एलेंटाउन फॉर पर्यूषण. तो वहां के प्रेसिडेंट ने मुझे इनवाइट तो कर दिया, मुझे बुला भी लिया, लेकिन जो दूसरे लोग थे उनको लगा कि ये छोटी सी, लाइक एंड आई वाज द यंगेस्ट स्पीकर. इतने साल में उन्होंने जिन जिन स्पीकरों को बुलाया था, सो आई वाज द यंगेस्ट ऑफ ऑल. तो उनको लगा कि वो शी विल स्पीक, मगर जब पर्यूषण कंप्लीट हुआ तो दे रियली अप्रिशिएटेड लाइक एनीथिंग. सो उनको लगा कि नहीं भाई, एज को देख के जज नहीं करना चाहिए. सो दैट वाज माय एक्सपीरियंस कि भाई हर जगह मुझे ये लगा कि भाई एज को, मतलब एज इज द मेन क्राइटेरिया. मतलब एज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं लोग कि इस एज में शी कैन स्पीक सो मच और शी कैन डू सो. Yes, generally people think that after certain age knowledge. और धर्म के विषय में तो आप सब जानते हैं कि भी धर्म कब करना चाहिए, तो आफ्टर सर्टेन एज. अभी तो भाई तो आपने बोला कि धर्म के लिए सब बोलते हैं कि धर्म ये एज में करना चाहिए, बट ड्यू टू हमारे बहुत सारे गुरुदेव है जिनकी वजह से आज का यंग जनरेशन, वी आर कनेक्टेड सो मच, टू मच, राइट. आज काफी सारे यंगस्टर्स है जो धर्म से जुड़ चुके हैं. they have started studying also, and this is the best part. और मैंने जैसे देखा है धर्म की वजह से क्या हो रहा है कि उनका जो एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ हैज चेंज. मतलब मैंने एक बार डिबेट भी किया था ऐसे टीनेजर्स के साथ, धर्म के ऊपर ही किया था, और मैंने बोला कि आपको क्या पार्टी करने का मन करता है, तो वो लोग बोले नहीं, अब हम लोग को पार्टी करने का मन नहीं करता है. इनफैक्ट देयर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स लाइफ हैज चेंज, देयर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ हैज चेंज. एंड जैसे आजकल सब तो आ रहा है, पर मेरे को लगता है कि पीपल ऑलवेज थिंक के मंदिर या जो भी है वो खाली आफ्टर 70 years में जाना चाहिए. तो what do you want to say about it? देखिए,
आफ्टर 70 के बाद धर्म जो है, सबसे पहले ये धर्म हम सबसे पहले तो ये शुरू से ही करने की चीज है, क्योंकि आफ्टर पर्टिकुलर एज ना हमारा मेमोरी पावर रहता है, ना हमारी बॉडी की उतनी कैपेसिटी रहती है, तो कोई भी धर्म क्रिया आफ्टर सर्टेन एज हम नहीं कर पाते। तो इसकी शुरुआत हमें कब करनी है? एट वेरी अर्ली एज हमें शुरुआत करनी है, तब जाके आफ्टर सर्टेन एज उस रिलीजन को हम अप्लाई कर पाएंगे। जब समझ लीजिए जब मेमोरी नहीं रही, जब हम कुछ लर्न नहीं कर पाएंगे, कोई तपश्चर्या आदि हम ऐसी कोई क्रिया नहीं कर पाएंगे, तब जो हमारा किया हुआ होगा, जो पढ़ा हुआ होगा, जो हमारी समझ हमने डेवलप की है पिछले सालों में, उसे हम अप्लाई कर पाएंगे और बेटर लाइफ आफ्टर सर्टेन एज हम जी पाएंगे। So that's your message to the people, young people. हाँ, definitely, क्योंकि this is the perfect age. At this young age only we can study, we can memorize, we can do lots of kriyas and everything that we can't do after particular age. अच्छा, आपने आगम के बारे में, आगम में से कोई एक ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कुछ बताइए जो इंटरेस्टिंग हो फॉर द व्यूअर्स एंड फॉर माई सेल्फ ऑल्सो। आगम, देखिए मेरा नॉलेज में मेरा क्या होता है पता है, कि कोई प्रोग्राम करने का मेरे को बोलता है, वो प्रोग्राम करने के लिए मैं जाती हूँ, हाँ वो प्रोग्राम जब करती हूँ तब पीएचडी कर लेती हूँ वो टॉपिक का, बात खत्म। बट आई एम नॉट सो मच इनटू ऑल दिस थिंग्स, मतलब डेप्थ में मेरे को इतना नॉलेज नहीं। तो आगम में आप कुछ बताइए जिससे हम लोग को भी पता चले कि व्हाट इज आगम अबाउट एंड व्हाट इज इट। तीर्थंकर परमात्मा भगवान महावीर की अंतिम वाणी यानी उत्तराधीन सूत्र। तो उत्तराधीन सूत्र में परमात्मा की एक गाथा है, कुसज्ञ ज ओस बिंदुए थोवम चित्ते लंब माणे एवं मनोयान जीवियम समयम गोयम मापमाय। अब देखिए इसका अर्थ है क्या है। इट अप्लाइज टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। कुसज्ञ ज ओस बिंदुए, इसका अर्थ है कि कुस मतलब घास, ग्रास, ठीक है। तो घास के अग्रभाग पर ओस की बिंदु यानी कि ड्यू ड्रॉप्स कितने समय तक रह पाएगी? बस हवा का झोंका नहीं आता है तब तक। जैसे ही हवा का झोंका आता है, वो जो ओस की बिंदु है वो चली जाती है। ठीक उसी प्रकार हमारा जीवन है, ठीक उसी प्रकार हमारा आयुष्य है, ठीक उसी प्रकार हमारी लाइफ स्पेन है, कि इस आयुष्य का कोई भरोसा नहीं है। कब हमारा आयुष्य पूरा हो जाएगा हमें नहीं पता। इसलिए परमात्मा महावीर ने गौतम स्वामी से कहा, समयम गोयम मापमाय, अर्थात हमें हे गौतम समय मात्र का भी प्रमाद नहीं करना है। इसका अर्थ क्या है कि गौतम के माध्यम से परमात्मा समस्त संसार के जीव को ये बात बता रहे कि टाइम इज वैल्यूएबल। टाइम हाथ से चला जा रहा है, जो टाइम चला गया इट इज नेवर गोइंग टू कम बैक। यू कैन बाय एनीथिंग विथ मनी बट यू कैन नॉट बाय टाइम। सो टाइम इज वेरी प्रेशियस, टाइम इज वैल्यूएबल। सो इस टाइम का जितना भी आप बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं आप करें। तो अगर हम सोचेंगे कि भाई आफ्टर सर्टेन एज ये करेंगे, तो वो सर्टेन एज के बाद हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, दैट इज आल्सो बिग क्वेश्चन मार्क। और आजकल तो हम सुनते हैं किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को अटैक आ गया, तो लाइफ इज सो अनसर्टेन। तो समयम गोयम मापमाय, समय मात्र का भी हमें प्रमाद नहीं करना है, समय को वेस्ट नहीं करना है, समय का मिसयूज हमें नहीं करना है। तो समय का हमें सदुपयोग करना है, हमें अच्छे काम करने हैं, अच्छा वांचन करना है, अपने जीवन को अच्छा बनाना है, अपने जीवन को गुणों से भर देना है। हमें ना किसी का क्रिटिसिज्म करना है, ना ही किसी के बारे में बुरा सोचना है, ना ही किसी को टोंट करना है, किसी का इंसल्ट करना है। हमें हमारा जीवन कैसा जीना है कि गुणों से अपने आप को भरे और सदुपयोग करे समय का। मतलब मैंने ये आगम के बारे में आपको पूछा क्यों पता है, कि आपने जैसे चालू किया ना आगम के बारे में बोलना, तो यू वेर मेहुली कामदार द स्पीकर प्रवचन, तो यू आर सो कंफर्टेबल स्पीकिंग अबाउट ऑल दिस थिंग्स। तो एक प्रवचन देने की आपकी स्टाइल है, वो ये माध्यम से, ये क्वेश्चन से पता चले कि आप कैसे प्रवचन देते हैं। सो जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनको बता दे कि
मेहुली जी की अपनी खुद की YouTube चैनल है। क्या नाम से है मेहुली जी आपकी YouTube चैनल का नाम? मेहुली कामदार। मेहुली कामदार के नाम से ही है। मुझे पूछना पड़ा बिकॉज आई क्योंकि भाई इज मैनेजिंग एवरीथिंग, तो मुझे पूछना पड़ता है कि भाई क्या नाम से यूट्यूब चैनल है। So I'm asking you. क्योंकि भावना भी फ्रेंकली स्पीकिंग मैं इतनी टेक सेवी नहीं हूँ, क्योंकि मेरा पूरा समय ये पढ़ने में स्वाध्याय में ही चला जाता है। तो जो मेरे दोनों बच्चे हैं, तो शी इज दे बोथ आर मैनेजिंग एवरीथिंग नाउ, तो दे हैव ग्रोन अप, सो दे हैव बिकम माय सपोर्ट सिस्टम। सो दोनों बेटे भावेन माय फादर इन लॉ, मतलब टीम वर्क है पूरा। आई अंडरस्टैंड, बट आपकी चैनल भी बहुत अच्छा कर रही है, 600 से ऊपर सब्सक्राइबर है, और जो देखना चाहेंगे यू कैन ज्वाइन द चैनल मेहुली कामदार की यूट्यूब चैनल, वेरी इंटरेस्टिंग चैनल। और हम लोग बिफोर वी कंक्लूड, आई वुड लाइक टू आस्क यू what message you would like to give to the society in general? भावना बहन, मैं आपको भी इतने साल से देख रही हूँ, जिस तरह से आप सोशली एक्टिव है, इतने अच्छे अच्छे इवेंट्स और प्रोग्राम आप करते हैं, लोगों के लिए आप इतना काम करते हैं। जब आप कर सकते हैं, जब हम कर सकते हैं, तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। बस हमें हमारे अपने भीतर के टैलेंट को पहचानना है और उस टैलेंट को बाहर निकालना है, और उसके लिए हमें आगे बढ़ना है। और एक और बात कहना चाहूंगी कि सबके भीतर में एक पोटेंशियल होता है, बस हमें उसे पहचानने की आवश्यकता है। बस एक बार हमने पहचान लिया कि हमारे भीतर में ये क्वालिटी है, ये पोटेंशियल है, ये टैलेंट है, तो बस फिर उसके लिए हमें मेहनत करनी है। और स्पिरिचुअलिटी के बारे में मुझे कहना है कि स्पिरिचुअलिटी से पावरफुल और कोई भी वस्तु पूरे विश्व में नहीं है। लोग पैसे का पावर चाहते हैं, पोजीशन का पावर चाहते हैं, लेकिन सब पावरों के ऊपर जो पावरफुल है, मतलब पावरों का जो पावर हाउस है, वो है स्पिरिचुअलिटी। तो स्पिरिचुअलिटी का पावर जिसके पास है, उसे और कोई पावर की आवश्यकता नहीं रहती है। तो इस चीज को समझना है कि स्पिरिचुअलिटी इज द मोस्ट पावरफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड। You are teaching this teachers in Channa Swadhyaya Mandir. Do you teach children also? Are you in contact with yes. children also? Yes, yes. मगर बड़े बड़े बच्चों के साथ में, मतलब हाँ। What is your experience of teaching the kids, children? वंडरफुल है, वंडरफुल एक्सपीरियंस भावना बेन। कि देखिए बच्चों के साथ जब बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उनके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो जब उनके क्वेश्चन को हम सेटिस्फाई कर पाते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं, कि हमने जो अभ्यास किया, हमने जो पढ़ाई की, वो मतलब वहां तक पहुंच पाए। क्योंकि बच्चों के जो क्वेश्चन होते हैं ना भावना में, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेटिस्फाई देयर आंसर्स। और आजकल के बच्चों के तो देखिए, पहले के समय में क्या होता था कि हमको जो हमारे पेरेंट्स बोल देते थे, हम सुन लेते थे, भाई ये नहीं करना है तो ठीक है, नहीं करना है। आजकल के बच्चे क्या है कि दे वांट लॉजिकल आंसर। भाई क्यों नहीं करना है? अरे भाई पाप लगेगा तो क्यों लगेगा, दूसरों को नहीं लगेगा, हमें लगेगा। तो ये उनकी, तो मुझे बस यही अच्छा लगता है कि व्हेनेवर आई एंटर द क्लास, बस मेरा एक ही क्वेश्चन होता है कि आप प्रश्न पूछो, आस्क योर क्वेश्चंस। तो वो क्वेश्चन को आंसर देने में पूरा क्लास फिनिश हो जाता है। तो आई लाइक कि लोग मुझे क्वेश्चन पूछे एंड आई लाइक टू आंसर। तो बच्चों के साथ मुझे यही मजा आता है। और जब टीचर्स को पढ़ाते हैं, तो टीचर्स शांति से सुन लेते हैं, दे डोंट आस्क एनीथिंग। और बच्चों के साथ ये फन है कि दे आस्क क्वेश्चंस, व्हिच आई लाइक। ओके, सो अभी जैसे लॉकडाउन में, which was your best lecture? सी देखिए भावना बेन, ये जो है शासन की प्रभावना है, और शासन की प्रभावना में एवरीथिंग इज बेस्ट फॉर मी। क्योंकि क्योंकि ये जो है कि पर्टिकुलर हम ऐसा नहीं, ऑल द लेक्चर्स आर इक्वल फॉर मी। क्योंकि व्हाई आई एम डूइंग,
कि मेरे जीवन का उद्देश्य यही है कि मुझे शासन की प्रभावना करनी है, मुझे जैनिज्म को स्प्रेड करना है. That is my goal of life. So each and every lectures are special for me and equally important. Like why I ask you, because मेरे लिए अगर पूछेंगे ना कि फन फ्रॉम होम में आपका बेस्ट इवेंट क्या होगा या आपका, तो मेरे पास लिस्ट लंबा पड़ा है. सो फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू आई आस्क यू कि व्हिच इज योर बेस्ट दिस थिंग. आपके बच्चे हैं दो लड़के हैं या लड़की? लड़का. दो बेटे हैं. दो बेटे हैं. हाँ. तो हाउ देयर अप्रोच इज टुवर्ड रिलीजियस? मतलब they also follow religion quite a bit. और what should I say कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे बच्चे मतलब इतना रिलीजन को फॉलो करेंगे, क्योंकि देखिए इतना रिलीजियस एटमॉस्फेयर हम लोगों के घर में नहीं था शुरू से. तो मुझे ऐसा लगता था कि भाई बच्चे करेंगे कि नहीं करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन आई एम प्राउड टू से कि एवरी डे दे आर डूइंग सामायिक along with me during this lockdown, and they learn Samaik and they are doing on their own without my help. And now and और ये मैं कभी नहीं सकती. हाँ, मेरे जो दोनों चला नहीं जाते, चन्ना सौदे मंदिर नहीं जाते, बट हम नहीं कह सकते ऐसा कि उनका नॉलेज उन बच्चों से कम है, because they study from me. I teach them so many things and they are very curious to know everything about Jainism. That is quite good. And before we end, let me tell the viewers, Mehuli Kamdar is a senior teacher who teaches all the teachers in Chandna Swadhyay Mandir. She has her own YouTube channel, Mehuli Kamdar के नाम से ही है. She has won many awards. She has written books. She has been to abroad and given lectures. MA in Jainology. Why I'm saying all this? You are an inspiration, because what you said about ladies. Yes, we ladies are versatile. The gents, during this lockdown, I think the gents have realized, because gents are also helping the ladies in the kitchen nowadays. So they have also realized. But in my Fun from Home page also, ladies are the maximum who are taking part. So घर का काम करके also they are doing all these things. So you are also an inspiration to the society, that at the age of this you started all these things and you are balancing your household life also and this religious life also. So heads off to you, Mehuli ji. And any message you would like to give before we conclude? यही कि भाई what should I say, मतलब I have covered everything I think. But one last but not the least कि हमें जीवन में आगे बढ़ना है, लेकिन जीवन में आगे बढ़ने के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि हम किसी को तकलीफ ना दें. हमारे जो परिवार के सदस्य हैं उनकी खुशी का भी हमें ध्यान रखना है. तो हम आगे बढ़े, लेकिन किसी को दुख पहुंचाकर या किसी को तकलीफ देते हुए आगे ना बढ़े, क्योंकि धर्म की शुरुआत घर से होती है. तो घर के परिवार की खुशी वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए. क्योंकि कई बार ऐसा होता है, आई हैव सीन भावना बिन, कि लोग कैरियर ओरिएंटेड हैं, आज लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन पीछे पेरेंट्स का क्या हो रहा है, बच्चों का क्या हो रहा है, दे आर लीस्ट बॉदर्ड, दे आर लीस्ट कंसर्न. तो वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें सबको साथ में लेकर चलना है. हम एक दिशा में तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ पीछे छूट रहा है, तो वो भी हमें देखना है. तो दैट इज माय मैसेज टू एवरी वुमन ऑफ दिस सोसाइटी.
थैंक यू सो मच। जैसे आपने समय की बात बताई ना, तो मेरा तो दिमाग में ऐसा है कि बीच बीच में कुछ ना कुछ आता रहता है। तो जैसे समय की बात बताई ना, तो मैं, हमारे खिलेन भाई है, खिलेन भाई से अभी बात हो रही थी बीच में, तो अचानक वो बोले कि अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे हम लोग सब सामायिक करने बैठे। तो उनके घर में भी आई थिंक वही सिस्टम है सामायिक कि पूरा फैमिली मिलके सामायिक करता है शायद। तो दैट इज ऑल्सो इन अ वे अ गुड, जैसे संस्कार बोलते हैं, सो फैमिली विल ऑल्सो फॉलो व्हाट यू डू। घर में जैसे मैंने लास्ट मेरा एक सेशन था उसमें भी बोला था कि घर में आप जो करते हैं बच्चे वैसे ही देखते हैं। एग्जैक्टली, वेरी ट्रू। या जैसे मैं सारा टाइम फेसबुक करती रहूंगी, बच्चे बोल हाँ करती है, तो फिर हम लोग क्यों नहीं करें। नहीं नहीं, but you are doing so much of good things, Bhavna, so you are also an inspiration. Yeah, I'm telling you, in general I'm saying, because what my always my motto is time management. I always believe in time management. लोग सोचते हैं कि ये घर में काम करती है कि नहीं, पर मेरे घर में भी सर्वेंट नहीं है आज 4 महीना से। हाथ से ही काम कर रहे हैं घर में, ऐसा कुछ नहीं है। और सर्वेंट हो या नहीं हो, खाना तो मैं घर में बनाती हूँ। सो बट पीपल थिंक कि ये इतना सारा कर रही है, तो बट इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, नथिंग एल्स। Yes. But today I especially saw a different side of you. मैंने पहले मेहुली को देखा था 20 साल पहले. She was a different lady, very introvert. Today also you are very humble. If I look at you, you look like a shy person only. But when you start speaking about religious, when you start speaking about Jainism, you open up like a flower. You bloom like a flower. Yes. So you are an expert in Jainism and Jainology. So hats off to you, Mehuli. Thank you for joining us. It was nice having you here on Fun from Homepage. Thank you so much. Thank you very much for inviting, Bhavna Ben. Thank you so much. Thank you. Take care, all of you. Have a good night's sleep. Jai Jinendra, and people who are watching, not only Jai Jinendra and Jai Shri Krishna both. Thank you very much. See you all tomorrow at 4 p.m. for the virtual exhibition we are doing between 4 to 7 p.m. Tomorrow, again Wednesday, virtual exhibition 4 to 7 p.m. And Wednesday, 9:30 p.m. we will have 6 teenagers debating on a different kind of topic at 9:30 p.m. Thank you very much, and thank you, Mayuli, for joining us. Thank you so much. Thank you, viewers. Take care. Goodbye. Good night. Good night.